Welcome, my dear students. In this session, we'll be taking up questions of alloys, questions based on alloys. Basically, alloys are also mixtures of two metals, two or more than two metals. So basically, mixtures of metals. We'll be doing questions on alloys. Because some questions on alloys we'll be doing on today's session, and then जब mixture alligation करेंगे तो वहाँ पे we'll be doing separately some more questions. And if you've not already connected with my Telegram, you can join the Telegram channel Mathological and also share the videos with others who are preparing for the CAT examination. और अगर सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करना, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के सेशन का. क्वेश्चन नंबर 1. P and Q are two alloys of aluminum and brass prepared by mixing metals in the ratio 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantities of the two alloys are melted to form a third alloy R, the ratio of aluminum and brass in R will be what? So there are two alloys of aluminum and brass. In P, alloy P, the ratio of aluminum and brass is 7:2, which implies that if there are total 9 kilograms of alloy P, in that 7 kilogram will be aluminum, 2 kilogram will be brass. And in alloy Q, the ratio is 7:11. So 7 plus 11 sum आ गया 18 kilograms. And we need to mix equal quantities of the two alloys to form a third alloy R. So if we have to mix equal quantities, P तो हमारा 9 kg है, Q है 18 kg, तो P को भी हमें 18 kg बनाना पड़ेगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो रिस्पेक्टिवली एल्यूमिनियम और ब्रास की क्वांटिटी पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और Q तो ऑलरेडी 18 है तो दोनों ही 18 हो गए. अब हम इनको मिक्स कर सकते हैं. तो टोटल आ गया 7 × 2 दैट इज 14 प्लस 7 21 किलोग्राम्स एल्यूमिनियम होगा, और ब्रास हो जाएगा 2 × 2 4 प्लस 11 दैट इज 15. तो 21:15 will be the answer. 3 से अभी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7:5 will be the final ratio of aluminum and brass. वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट में ऑर्डर जरूर देखना है कि एल्यूमिनियम और ब्रास का रेशियो पूछा है या फिर ब्रास और एल्यूमिनियम का रेशियो पूछा है. एल्यूमिनियम ब्रास का पूछा 7:5 will be the answer option C. Clear? Next question. A and B are two alloys of copper and tin in the ratio 5:3 and 5:11 respectively. If A and B are mixed to form a third alloy C with equal amount of copper and tin. So in C there is equal amount of copper and tin, then what is the ratio of alloy A and B in the new alloy C? तो कॉपर और टिन का रेशियो A में कितना है? 5:3, and in B the ratio is 5:11. 5 plus 3 is 8 kilograms. 5 plus 11, so that is 16 kilograms. So first of all, before taking out the ratio, सबसे पहले इनको इक्वल तो करना पड़ेगा. So this is 8 kilograms, this is 16, so we'll multiply the first one, the alloy A, by 2. ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल हो गए. नाउ लेट अस अज्यूम कि हमारा जो रेशियो लेना है, क्योंकि फाइनली सी अलॉयज जो हम मिक्स करके बना रहे हैं उसमें रेशियो कॉपर और टिन का शुड बी 1:1, इक्वल होने चाहिए, इक्वल अमाउंट होना चाहिए. लेट अस अज्यूम कि अलॉय ए को हम x टाइम्स ले रहे हैं, और x से ही हमारा काम हो जाएगा, तो उसको अलॉय बी को y से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें x में ही जो फ्रैक्शन में रेशियो मिल जाएगा वही हमारा आंसर होगा. ठीक है, तो कितना क्वांटिटी आ जाएगा? 2x से मल्टीप्लाई करोगे कॉपर को, 5 kg को, तो 5 × 2x, दिस विल बी 10x प्लस 5. So this is total copper quantity, and this should be equal to 2x × 3, that is 6x plus 11. So 10x plus 5 should be equal to 6x plus 11. So 10x minus 6x, 4x will be equal to 11 minus 5, which is 6. X will be equal to 6/4 or 3/2. So basically our ratio of alloy A and B should be 3:2. 3:2, option D. Clear? Next question लेते हैं. Question number 3. A and B are two alloys of zinc and copper. In alloy A, 1/3 by weight is zinc and the rest is copper. In alloy A, 1/3 by weight is zinc and the rest is copper. तो A में क्या है? 1/3 है जिंक और कॉपर है, रेस्ट यानी कि 2/3 है, टोटल 1 यूनिट है, तो यानी कि 1:2 का रेशियो आएगा जिंक और कॉपर का. सिमिलरली अलॉय बी में 1/4 बाई वेट इज जिंक, 1/4 इज जिंक, तो 3/4 होगा कॉपर, 1/4 जिंक है, 3/4 कॉपर होगा, यानी 1:3 का रेशियो होगा. And if 2 kg of alloy A and 3 kg of alloy B are mixed, then what is the ratio of zinc and copper in the new alloy? First of all, 1 plus 2,
ये टोटल हमारा कितना बन रहा है, 3 kg बन रहा है या 3 यूनिट्स बन रहा है, यूनिट्स बन रहा है, ठीक है। और सेकंड में 1 + 3 यानी कि 4 यूनिट्स बन रहा है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो फर्स्ट इज 3 यूनिट्स, सेकंड इज 4 यूनिट्स। सबसे पहले इक्वल करेंगे इनको। इक्वल करने के लिए विल बी मल्टीप्लाइंग द एलॉय ए बाई 4 और एलॉय बी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये इक्वल हो गए, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी हो गया। एज्यूम कर लो कि ये 1 kg है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 kg ऑफ एलॉय ए एंड 3 kg ऑफ एलॉय बी आर मिक्स्ड। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात ये है कि वेदर यू मिक्स 2 kg ऑफ ए एंड 3 kg ऑफ बी, और you mix 4 kg of A plus 6 kg of B, or you mix 8 kg of A and 12 kg of B, और एनी रेशियो जहां पे कि A और B का जो टोटल रेशियो आ रहा है क्वांटिटी का वो 2:3 हो, रेशियो हमारा ओवरऑल का सेम ही आएगा। अगर हमारा A और B का रेशियो 2:3 का है तो अल्टीमेटली हमें रेशियो सेम ही मिलेगा, चाहे 2 kg 3 kg हो, 4 kg 6 kg हो, 8 kg 12 kg हो। सो दैट इज इमैटेरियल। तो अगर तुम ये भी सोचते हो कि यहाँ पे दिस इज 12 kg दिस इज ऑल्सो 12 kg, ठीक है, तो इक्वल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विल मल्टीप्लाइंग बाई A बाई 2 एंड B बाई 3। तो अब 2:3 का रेशियो आ गया। तो अब जो हमें आंसर मिलेगा वही हमारा एक्चुअल आंसर आएगा 2 kg और 3 kg में भी। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बातें अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है। सो इफेक्टिवली हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 4 8 से मल्टीप्लाई करना है जिंक को। तो 1 × 8 2 × 8 कॉपर को, और सेकंड वाले में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो जिंक हो जाएगा 8 + 9 17 यूनिट्स एंड कॉपर हो जाएगा 16 + 27 43 यूनिट्स। तो 17:43 विल बी आवर आंसर ऑफ जिंक एंड कॉपर। और वही ऑर्डर में पूछा है तो 17:43 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In two alloys, respective ratio of copper and zinc are 1:3 and 4:1 respectively. तो कॉपर और जिंक का रेशियो आ रहा है 1:3 एंड 4:1। तो टोटल है 1 + 3 4 यूनिट्स, 4 + 1 5 यूनिट्स। And if 16 kg of the first alloy and 10 kg of the second alloy are melted together with some pure copper, 16 kg ऑफ द फर्स्ट अलॉय को हम ले रहे हैं। तो फर्स्ट अलॉय एक तरह से हमारा जैसे 4 kg यहाँ पे और 5 kg यहाँ पे, 16 kg लेना है, ठीक है। तो इक्वल करने की बजाय हम स्ट्रेट अवे भी कर सकते हैं। इक्वल करना तब जरूरी होता है जबकि ये वैल्यूज हमारी 16 10 की बजाय कुछ और वैल्यूज होती है, टिपिकल वैल्यूज होती है। बट 16 हमारा क्लियरली 4 का मल्टीपल है और 10 क्लियरली हमारा 5 का मल्टीपल है, तो हम स्ट्रेट अवे ले सकते हैं। 4 kg में 1 kg हमारा कॉपर होगा और 3 kg जिंक होगा, तो 16 kg लेंगे यानी कि इसका 4 टाइम्स लेंगे। सिमिलरली 10 kg ले रहे हैं यानी 5 kg का 2 टाइम्स ले रहे हैं। और देन एडिशनली वी आर मिक्सिंग सम मोर कॉपर, सम मोर प्योर कॉपर वी आर मिक्सिंग, ठीक है। कितना मिक्स कर रहे हैं पता नहीं, लेट अस से x किलोग्राम्स कॉपर हम मिक्स कर रहे हैं। ओवरऑल कॉपर कितना हो जाएगा, 4 + 8 12 + x किलोग्राम्स, और जिंक हो जाएगा 12 + 2 14 किलोग्राम्स। एंड द इफेक्टिव रेशियो ऑफ जिंक टू कॉपर, ऑर्डर चेंज किया है यहाँ पे, जिंक टू कॉपर का रेशियो है 2:3 का, यानी कि कॉपर टू जिंक का रेशियो आ जाएगा 3:2 का। तो 12 + x डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू 3/2। 2 से काटा 7 आया, तो 12 + x इज इक्वल टू 21। तो x विल बी इक्वल 21 - 12 दैट इज 9 किलोग्राम्स। ओके, तो 9 किलोग्राम्स कॉपर वी आर मिक्सिंग। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वेट ऑफ द न्यू एलॉय। वेट ऑफ द न्यू एलॉय क्या होगा, 16 kg तो ऑलरेडी हमारा फर्स्ट एलॉय था, 10 kg सेकेंड एलॉय था और 9 kg प्योर कॉपर है। 16 + 10 + 9 दैट इज 35 किलोग्राम्स। तो दिस विल बी आवर आंसर 35 kg। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू टाइप्स ऑफ एलॉय कंटेन गोल्ड एंड सिल्वर इन द रेशियो 7:22 एंड 21:37। तो एलॉय 1 में गोल्ड और सिल्वर का रेशियो है 7:22 एंड एलॉय 2 में द रेशियो इज 21:37। And in what ratio should the two alloys be mixed to form a new alloy which contains gold and silver in the ratio 25:62? Effectively हमें रेशियो चाहिए 25:62 का। ओके, ये वैल्यू आ रहा है एलॉय 1 का 7 + 22 29 यूनिट्स 29 किलोग्राम्स, और एलॉय 2 के लिए 21 + 37 दैट इज 58 किलोग्राम्स, यानी कि डबल आ रहा है।
तो सबसे पहले दोनों को इक्वल करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, और क्योंकि हमें पता नहीं है किस रेशियो में मिक्स करना है तो लेट अस से मल्टीप्लाई बाय 2x कर दिया हमने, और x की वैल्यू से हमें रेशियो पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 करके सबसे पहले इक्वल किया और फिर पहले वाले में x से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो इफेक्टिवली हमारा कितना आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा 2x इंटू 7 यानी कि 14x प्लस 21, एंड दिस डिवाइडेड बाई 2x इंटू 22 दैट इज 44x प्लस 37, एंड दिस इज इक्वल टू 25 बाई 62। कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो रही है, बट ठीक है, करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 14x इंटू 62 कितना आएगा वैल्यू, 14x इंटू 62 620 प्लस 248, तो 768x प्लस 62 इंटू 21, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1240 प्लस 62 यानी कि 1302, 25 इंटू 44 1100x प्लस 37 इंटू 25 1425 1000 यानी कि 925 वैल्यू आ गई। अब 1100x माइनस 768x दिस विल बी 332x, and that will equal to 1302 minus 925, so that will be 377। कैलकुलेशन हमने ठीक किया है कि नहीं किया है, तो दिस इज ठीक है, कैलकुलेशन सही हुआ है। ओके, अब ये डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, कितने से कटेगा ये 332, किस वैल्यू से कैंसिल आउट हो सकता है, डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में 45 का। एक अपन ने गड़बड़ कर दिया है, दिस विल बी 868 होगा ना, दिस विल बी 868, और अगर ये 868 है तो दिस विल बी 232, 232x इज इक्वल टू 377। ओके, ठीक है, अब डिफरेंस आ रहा है हमारा 145 का, यानी कि 29 का मल्टीपल आ रहा है, तो 29 से 8 टाइम्स जा रहा है, एंड दिस विल बी गोइंग 13 टाइम्स, 290 प्लस 87 13 टाइम्स जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 13/8, तो द रेशियो शुड बी 13:8। हालांकि इस क्वेश्चन को हम इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करेंगे एग्जाम में, एलिगेशन जब हम सीखेंगे तो एलिगेशन का मेथड यूज करके विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज इतना कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं, सिंपली हो जाएगा एलिगेशन से। ठीक है, इन एनी केस आंसर हमारा ऑप्शन बी आ रहा है 13:8। क्या बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, an alloy of manganese, tin and bronze contains 90% bronze, 7% manganese and 3% tin. A second alloy of bronze and tin is melted with the first and the mixture contains 85% of bronze, 5% manganese and 10% of tin. So what is the ratio of bronze and tin in the second alloy? ओके, तो alloy हमारा क्या है, ब्रॉन्ज है, मैंगनीज ऑर्डर का ध्यान रखना है, और टिन। तो ब्रॉन्ज इज 90%, तो 90 यूनिट्स मान लेते हैं, 7 यूनिट्स मैंगनीज हो गया और 3 यूनिट्स हमारा टिन हो गया, टोटल 100 kg में दिस इज द प्रपोर्शन, दिस इज द रेशियो। और सेकेंड अलॉय है ब्रॉन्ज और टिन का, ठीक है, सेकेंड अलॉय में सिर्फ ब्रॉन्ज और टिन है, तो बेसिकली देयर इज नो मैंगनीज इन द सेकेंड अलॉय, मैंगनीज इज 0, मैंगनीज तो है नहीं सेकेंड अलॉय में, और ओवरऑल जो मिक्सचर आ रहा है उसमें 85% ब्रॉन्ज है, 5% मैंगनीज है और 10% टिन है। तो क्वेश्चन आस्किंग व्हाट इज द रेशियो ऑफ ब्रॉन्ज एंड टिन इन द सेकेंड अलॉय। ठीक है, सो यहाँ पे 85 प्लस 5 प्लस 10 दिस इज ऑल्सो 100 किलोग्राम्स में। क्लियर? अब सबसे पहली बात जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में समझ में आनी चाहिए कि जो फर्स्ट अलॉय है उसमें वी हैव ब्रॉन्ज एंड मैंगनीज एंड टिन, बट इन द सेकंड अलॉय वी डू नॉट हैव मैंगनीज। तो जो ओवरऑल हमारा रिजल्टेंट अलॉय बन रहा है, इन दैट रिजल्टेंट अलॉय जो भी हमें मैंगनीज मिल रहा है, ऑल दिस मैंगनीज हैव कम फ्रॉम, कहाँ से आया होगा, यहीं से तो आया होगा, यहीं से तो आया होगा, इजंट इट सो? तो मैंगनीज को दोनों में इक्वल कर लेते हैं, ब्रॉन्ज और टिन को भूल जाओ, मैंगनीज को दोनों में इक्वल कर लेते हैं, अलॉय नंबर 1 में और रिजल्टेंट अलॉय में। तो रिजल्टेंट अलॉय में हमारा 5 यूनिट्स है, अलॉय नंबर 1 में 7 है, 5 और 7 का एलसीएम आएगा 35, यानी कि फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई कर दो 5 से तो 35 हो जाएगा, और रिजल्टेंट में मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो इफेक्टिवली रिजल्टेंट का वेट हमारा 700 kg आ गया, जबकि फर्स्ट अलॉय का वेट है 500 kg, तो 200 kg वेट हो जाएगा हमारा सेकेंड अलॉय का। क्या बात क्लियर है? ठीक है, 500 यूनिट, 200 यूनिट, 700 यूनिट। ओके, क्या ये बात समझ में आती है? और जैसे ही तुमने ये बात कर लिया, तो अब हमारा ब्रॉन्ज कितना आ रहा है, ब्रॉन्ज आ रहा है
90 इंटू 5 450, मैंगनीज है 7 इंटू 5 और टिन है 3 इंटू 5, और रिजल्टेंट में दिस इज 85 इंटू 7, 5 इंटू 7 एंड 10 इंटू 7. So if this is 70, if this is 70, this is 15, यानी कि 55 आ जाएगा 200 kg में, 200 kg में 55 है, ठीक है, 200 kg में 55. और अगर 55 टिन है, बाकी बचा हुआ सब कुछ ब्रॉन्ज होगा, तो ब्रॉन्ज हमारा हो जाएगा 145. तो रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा ब्रॉन्ज और टिन का 145:55, 5 से काटोगे 29:11. तो दिस विल बी आवर आंसर. 29:11 विल बी द रेशियो ऑफ ब्रॉन्ज एंड टिन. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बस हमें इतनी सी बात समझनी थी कि मैंगनीज इज ओनली कमिंग इन द रिजल्टेंट अलॉय फ्रॉम अलॉय नंबर 1, एंड दैट इज वाई वी विल बी इक्वेटिंग मैंगनीज, और मैंगनीज को इक्वेट कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और उसको इक्वेट नहीं किया फंसे रहोगे तो अननेसेसरी इक्वेशन बनाओगे, टाइम वेस्ट करोगे. क्लियर? ओके. तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम अलॉयज. आई बिलीव सेशन में क्वेश्चन समझ में आएंगे, किसी भी क्वेश्चन में कहीं डाउट नहीं रहा होगा. फिर भी कहीं पे डाउट हो तो कमेंट जरूर मेंशन करना. सेशन पसंद आया तो उसको लाइक करना हो. अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना. और टेलीग्राम पे भी चैनल जो है मैथोलॉजिकल, उसको ज्वाइन कर लेना. दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर. और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन, एंड आफ्टर दैट विल बी कंटिन्यूइंग विद परसेंटेजेस. ओके, बाय बाय.